Hello dear students, this is ZaidSir Biology and today our topic is about centrosome. Okay, so let's start. So what is centrosome? It is basically a structure, okay, which is made up of pair of centrioles, or we can say it is made up of two centrioles. When two centrioles combine, they form a structure, okay, which is known as centrosome. Now what are these centrioles? They are cylindrical shaped cell organelles, okay. They are cylindrical shaped like this, or we can say they are barrel shaped, okay. They are cylindrical shaped or barrel shaped, and these centrioles, they are made up of tubes of proteins, okay, like this. Tubes of proteins. This is a side view of centriole. So it's made up of tubes of proteins, and these tubes of proteins, they are called as microtubules, okay. These are microtubules. These tubes of protein, these are hollow tubes of proteins, okay. These are hollow tubes which are made up of protein, and the protein of which these microtubules are made of, that protein is called as tubulin protein, okay. So these microtubules, they form this cell organelle, this structure which is called as centriole, okay. So this microtubule, your NCERT writes that these microtubules, these are basically cytoskeletal elements, okay. These are cytoskeletal elements. What does cytoskeletal element mean? It simply means that they are present in cytoplasm and they provide structural support to the cell, okay. They are present in cytoplasm and provide structural support to cell, like they maintain cell shape, okay. And these microtubules, they are present in cytoplasm and also they form this structure, this organelle, centriole, because they are found in this. The centriole is made up of these tubes. These tubes are called as microtubules, okay. And in a typical centriole, there are 27 microtubules present. So in a typical centriole, there are 27 these microtubules present. So 27 microtubules are present in a centriole, and these 27 microtubules, they are present in triplet sets, okay, like this. If this is one microtubule, second one and third one, so this form a set. It is a triplet, okay, and this triplet is called a set. This is a set. Like these triplets, like this, it will be another triplet, okay. This will be the another set. Like these, there are 9 sets, okay. There are 9 sets, of which of triplets. Triplet consists of 3 microtubules. So like this, there are 9 into 3, total 27 microtubules are present in a centriole, okay. And your NCERT writes about the arrangement. It says it is 9 plus 0 arrangement, okay. What does this 9 plus 0 arrangement means? It simply means, if I will show you a diagram of this centriole, if I will show you the top view of this centriole, like this, if this is a centriole, this was the side view, and now if I show you a top view, this view, it will be like this.
like this. Okay, so these are triplets. Okay, like this. So these microtubules, they are arranged in triplets. Okay, and they form 9 sets like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. There will be 9 sets of these triplets. Okay, and these triplets, they are attached to this central tube, and this is not a microtubule, it is a central protein. It is a central protein which is known as hub, hub. Okay, so this, it is not a microtubule, it is a central protein which is known as hub. Okay, and these triplet sets, they are attached to this proteinaceous hub. That's why it says it is 9 sets on the periphery and 0. That means it is 0. No microtubule is present in the center of centriole. So that's why we say it is 9 plus 0 arrangement in centriole. So basically हमने क्या पढ़ा, हम बोल रहे जो सेंट्रोजोम होता है, ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है विच इज मेड अप ऑफ, जो बना हुआ होता है 2 सेंट्रियोल से, और हम यहां बोलते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल. ठीक है, जब 2 सेंट्रियोल आपस में जुड़ते हैं तो सेंट्रोजोम बनता है. ठीक है, फिर हमने बोला ये जो सेंट्रियोल होता है, ये क्या होता है, खुद ये होता है खुद सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल ऑर्गेनेली. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है. ओके, और ये किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है इनसे, ट्यूब्स ऑफ प्रोटीन से. अब हमने बोला ये जो ट्यूब्स ऑफ प्रोटीन से, ये क्या होता है, ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल. दीज ट्यूब्स ऑफ प्रोटीन दे आर कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल्स. और माइक्रोट्यूब्यूल का हम बोलते हैं इट इज ए साइटोस्केलेटल एलिमेंट. ये प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में. दीज ट्यूब्स दे आर प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म. और जब ये ट्यूब्स बहुत सारे मिलते हैं तो ये सेंट्रियोल को भी बनाते हैं. ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि बस ये माइक्रोट्यूब्यूल यहीं पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल पे, नहीं, ये प्रेजेंट होते हैं सेल में, ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हमने बोला. ओके, फिर हमने बोला जो एक टिपिकल सेंट्रियोल होता है, इसमें 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, 27 these hollow tubes, these microtubules form this centriole structure. Okay, फिर हमने बोला कि एनसीईआरटी बोलती है the centriole has a 9 plus 0 arrangement. What does it mean? It simply means जो ये microtubules है 27, ये अरेंज हुए होते हैं इन ट्रिपलेट्स में. ठीक है, 3-3 करके ये ट्रिपलेट्स बनाते हैं. 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, ऐसे ही ये 9 ट्रिपलेट्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं 9 सेट्स. ओके, जो कि फिर आते हैं कितना टोटल, दे आर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, और जो बीच में जो होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, ये होता है प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हब. ओके, तभी हम बोलते हैं इट इज 9 plus 0 अरेंजमेंट. सो यहां तक क्लियर है. ओके, नाउ जब आप देखोगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी क्या बोलते हैं इस सेंट्रोजोम के बारे में, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली. ओके, जो सेंट्रोजोम होता है ये होता है प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स. ओके, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में. कैसे करता है हेल्प, वो हम अभी देखेंगे. तो यहां तक आपको क्लियर हो गया जो सेंट्रोजोम है. अगर ये मैं बनाऊंगा, अगर ये एक सेंट्रियोल है, जब ऐसे 2 सेंट्रियोल्स मिलते हैं, यूजुअली एनसीईआरटी आपकी बोलती है कि ये 90 डिग्री पे फ्यूज होते हैं. ओके, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इट इज सेंट्रोजोम. जब 2 सेंट्रियोल ऐसे मिलते हैं तो इनको हम बोलते हैं इट इज ए सेंट्रोजोम. और जो ये सेंट्रोजोम होता है, इसके अराउंड कोई लेयर नहीं होती है, कोई लिपिड लेयर नहीं होती है. अगर इसके अराउंड ऐसे कोई लेयर होती ना, तब हम बोलते हैं इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. बट इसके अराउंड कोई लेयर नहीं होती है. ओके, सो इट इज ए मेम्ब्रेन लेस, इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर.
नो मेम्ब्रेन बाउंड। तो जो सेंट्रोजोम होता है ये इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सो इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी फंक्शंस पे। तो हमने बोला जो सेंट्रोजोम होता है ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, ओके। और एनिमल सेल में इसका रोल क्या होता है, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो कैसे करता है हेल्प सेल डिवीजन में, ये करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है, इट ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स को। अब आप बोलोगे सर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में तो हमने पढ़ा यहाँ पे, दीज आर ट्यूब्स ऑफ प्रोटीन। सर ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? सो दे आर जस्ट लॉन्ग ट्यूब्स ऑफ प्रोटीन्स। सिंपल आप मानो ऐसे, अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल है ना, दिस इज ए माइक्रोट्यूब्यूल, जब ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्गिट्यूडनली ज्वाइन होंगे ना, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल और ऐसे तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल, तो इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को, जो ये लॉन्ग फाइबर टाइप स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स। और इसको कौन बनाता है, ये सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम फॉर्म दिस स्पेशल लॉन्ग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। और इनका रोल क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रोजोम का हमने बोला ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। कैसे करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है किनको, माइक्रोट्यूब्यूल्स को और स्पिंडल फाइबर्स को। ठीक है, और ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये करते हैं सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिवाइड करने में हेल्प करते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स। अब आप बोलोगे सर कैसे करते हैं, तो उसका मैं आपको आइडिया दूंगा। सो जब आप एम फेज पढ़ते हो बेटा, ठीक है, सेल डिवीजन का जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन एम फेज, उसमें आप पढ़ते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बेटा जो मेटाफेज होता है ना, मेटाफेज मेटाफेज उसमें क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, इनकी आर्म जो होती है वो अलाइन होती है एक दूसरे के साथ, और इसको हम बेटा बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट। सिंपल है ना, इतना तो आपको पता होगा। और फिर क्या होता है, यहाँ पे ये सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है और दूसरे एंड पे दूसरा, जिनको हम बोलते हैं अपोजिट पोल्स। एक पोल पे होता है एक सेंट्रोजोम और दूसरे पोल पे होता है दूसरा सेंट्रोजोम। और ये क्या करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी किया होता है क्या, ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो ये अपने स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करते हैं इन क्रोमोसोम्स के साथ ऐसे। ठीक है, और ये वाला भी करेगा इसको, हर किसी क्रोमोसोम को ये अटैच करते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है बेटा, क्रोमोसोम के जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये कैसे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से, है ना। सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं ना एक दूसरे के साथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर जो इस क्रोमोसोम को अपने साथ अटैच करेगा उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, है ना। तो एक एक क्रोमोसोम के पास कितने काइनेटोकोर्स होते हैं, दो। एक होता है ऊपर साइड से और दूसरा होता है नीचे साइड से। काइनेटोकोर बेटा सिंपल हम बोलते हैं जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है ना क्रोमोसोम के साथ, उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, और एक क्रोमोसोम के पास एक सेंट्रोमियर होता है और दो काइनेटोकोर्स। और इस एक क्रोमोसोम को कितने स्पिंडल फाइबर्स अटैच करेंगे, दो। एक ये वाला और एक ये वाला सेंट्रोमियर, इसका स्पिंडल फाइबर और इसका स्पिंडल फाइबर इसको अटैच करेगा। और इवेंचुअली फिर क्या होता है बेटा, जब सेल एनाफेज में जाती है ना, प्रोफेज के बाद, सॉरी मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आता है, एनाफेज। एनाफेज, और एनाफेज में क्या होता है, दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स दे गेट सेपरेटेड। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड जाएगी यहाँ और एक जाएगी यहाँ। ठीक है, और इनको हम फिर बोलते हैं दीज आर द क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, सो दिस इज हाउ दे हेल्प इन द सेल डिवीजन। ओके,
सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड दो एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैं और बोलूंगा सेंट्रोमियर के बारे में तो वो या आप एडिशनल पॉइंट्स लिखना। तो हमने बोला जो सेंट्रोमियर होता है ये ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स को। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट्स आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ओके, तो ये आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे सेंट्रोमियर को क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, बिकॉज इट ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल एंड स्पिंडल फाइबर्स इन द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, और दूसरी एक बात जो ये सेंट्रियोल होता है, ओके, सेंट्रियोल जो हमने अभी देखा ये बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल से जो ट्रिपलेट्स में होते हैं। तो ये क्या देता है, ये कार्ट व्हील अपीयरेंस देता है। जैसे कार्ट का वो व्हील होता है ना, ऐसे ऐसे होता है ना कार्ट का व्हील, है ना, टायर जो होता है कार्ट का, तो ये वही अपीयरेंस टाइप देता है ना। ओके, बिकॉज जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये इस प्रोटीनिशियस हब जो बीच में होता है इसके साथ अटैच होते हैं थ्रू दीज रेडियल सपोक बोलते हैं हम इसको, दीज आर रेडियल सपोक्स। सो यह आप लिखना, ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है क्योंकि जब आप बुक्स देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये। So this was all about it. So I hope you have enjoyed today's session. Thanks for watching.